ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನ ಆರಾಧಿಸ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ, ಯಾರದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತುಗಳದ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 24ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 24 एज रेस्पॉन्सिव रीडिंग. भजन संहिता 24वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए हम पढ़ेंगे. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से भी धर्मी ठहराएगा. ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है. फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, है सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋಣ. हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे. शैल वी प्रे. ಭೂ ಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ನಿನಗೆ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸುವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತುಗಳದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ನಿನಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದಿ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ದೇವರೇ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜನರ ತನಕ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಇವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಇವರ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕರ್ತನೆ ಭಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯುದ್ಧ ಆಗಲಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀನೇ ಬಲಶಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम पुराने नियम से उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 6 से 8 वचन तक पढ़ेंगे और उत्पत्ति की किताब में से ही 13वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे. We will be reading from Genesis in the Old Testament, Genesis chapter 12 6 to 8, and again from chapter 13 we will read from verses 1 to 4. हम उत्पत्ति की किताब से 12वां अध्याय का 6 वचन से 8 वचन तक, 13वां अध्याय से 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे. उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बाज वृक्ष है, पहुंचा. उस समय उस देश में कानानी लोग रहते थे. तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा. और उसने वह यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई. फिर वहाँ से कुछ करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल
और पूर्व की ओर ए है, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। 13वां अध्याय का 1 से 4। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कानान के दक्षिण देश में आए। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रुपये का बड़ा धनी था। वह फिर दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिससे उसने पहले बनाई थी, और वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। नए नियम में विल बी रीडिंग फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम में फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 3 अध्याय, फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। इन द न्यू टेस्टमेंट विल बी रीडिंग फ्रॉम फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14। फिलिपियों को लिखा पत्र उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन नए नियम में हम पढ़ेंगे। Philippians 3:13 and 14. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सन्निधान में अपने आप को अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ಬೋಧಿಸು, ಮಾತೃವದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು। ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಭಾಗಗಳು। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। हम ये देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने पुराने नियम में जो भाग हम पढ़े हैं उसमें ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा अब्राहम को कहा कि मैं तुझे ये देश दूंगा, और अब्राहम से जब परमेश्वर कहता है कि तू यहाँ से चल, तो वो अपने स्थान से अपने सारी संपत्ति को लेकर, अपने पत्नी, अपने भाई के बेटे को लेकर, उसके हर चीज़ों को लेकर उस स्थान से परमेश्वर ने दिखाई हुए स्थान पर एक भरोसे पे वो जाता है। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए वे निकल पड़ते हैं और उस स्थान में जाकर तंबू लगाता है जिस स्थान में परमेश्वर ने उससे कहा था, या उस स्थान में जहाँ पर वो परमेश्वर की वेदी बनाई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, ऐसा हम देखते हैं। और नए नियम में भी जो भाग हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं पीछे की न देखते हुए, पीछे के बारे में ना सोचते हुए, आगे जो आसमानी आशीषों का है या ऊपर की एक गोल है, वहाँ पर अपनी दृष्टि को लगाकर मैं चलते रहूँगा यीशु मसीह में। वहाँ पर मैं अपनी दृष्टि को लगाए रखूँगा। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे की ओर चलते रहना, या आगे परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे बढ़ना उचित है। यदि हम आज के माहौल को देखकर घबरा रहे हैं, आज की स्थिति भयंकर स्थिति है। आज की स्थिति में हम
हम सारे लोग घबराते हैं। यहाँ पर महामारी है, यहाँ पर युद्ध का एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पर हर तरह का एक भय है, लोगों को नौकरी नहीं है, आर्थिक स्थिति में हम गिर चुके हैं, अलग अलग वेदनाएं, अलग अलग कष्ट, अलग अलग पीड़ाओं से हम जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की और हमारी यात्राओं को, हमारी चलन को करते रहना। केवल ऐसी स्थिति में नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमेशा हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मसीह यीशु की ओर चलता रहूँगा। पौलुस ने जिस तरह कहा कि मेरा लक्ष्य कि प्रभु यीशु मसीह की ओर है। प्रियो, सच्चाई यही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास या उसके अनुग्रह में हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, और वही आखिरी सच है। इसके अलावा, यीशु के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। आज जब हम देखते हैं जिस तरह की माहौल बनी हुई है, इस माहौल में हम ये भी देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम भयंकर रीति से हो रहा है, अद्भुत रीति से हो रहा है। आज आप अगर न्यूज़ से वाकिफ हैं तो देखिए, हमारे देश को, बहुत सारे देश हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, और इतने नहीं, ये सपोर्ट जो हमें मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि ये परम प्रधान परमेश्वर का उत्तम कार्य हमारे देश में हो रहा है, या परमेश्वर स्वयं हमारे देश को ऐसा बनाया है कि हम दूसरे बड़े बड़े देशों के साथ, छोटे छोटे देशों के साथ हम मिल जाएं, या हमारे दुश्मन कम हो जाए। प्रियो, इसके अलावा और भी हम देखते हैं खाड़ी प्रदेश में या खाड़ी देश में इज़राइल का दबदबा अब बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था कि यहूदियों को सब नफरत करते थे। आज इस्लाम जगत में या इस्लाम देशों के साथ इज़राइल का है, या इज़राइल के साथ में वे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं। ये अपने में ही एक अद्भुत कार्य है, और ये कार्य केवल परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य से ये संभव नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह से ये संभव है, और ये हो रही है। और देखिए, ऐसे माहौल में भी हम परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं। महामारी के समय हमारे अपने लोग जो पीड़ित हैं, वे लोगों को परमेश्वर चंगाई दे रहा है। हमारे देश में मृत्यु की संख्या ज़्यादा नहीं है। इस महामारी के समय में भी हम जी पा रहे हैं, जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु का कार्य हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे हर माहौल में हो रही है। लेकिन प्रियो, हम जैसे मैंने कहा कि हमें आत्मिक स्थिति में बढ़ना है, आत्मिक उन्नति में वापस हमें चलना है। जैसे स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर काफ़ी हम लोग विश्वास में डगमगा भी रहे हैं। हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा न करते हुए हम हार भी मान रहे हैं, और हम आज का या बीते हुए कल का जो हार है, उसी हार में या उसी स्थिति में हम सोचते हैं कि कल भी वैसे स्थिति होगा, ये नहीं बदलेगा, और उस भय में हम लोग जी रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर के वचनों में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, फिलिपियों को लिखा पत्र में हम ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर आप फिलिपियों को लिखा पत्र 1 से लेकर 4 अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे, अध्याय को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ 10 बातें हैं, 10 विषय हैं। मैं पूरा फिलिपियों को लिखा पत्र को, पूरा उस पत्र को लेकर बात कर रहा हूँ। इन भागों में या इस फिलिपियों के लिखा पत्र में हम ये देखते हैं कि 10 बातें, 10 विषय जो एक मनुष्य को, जो एक विश्वासी को, जो एक परमेश्वर के चुने हुए लोग जो जिसे हम कहते हैं या हमें ये करना है या हमें ही इसके अनुसरण करना है। पहला, हम जैसा फिलिपियों के लिखा पत्र उसका पहला अध्याय 6वां वचन में लिखा है कि हम विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। हमारा संपूर्ण विश्वास में आगे बढ़ना है, यानी कि हम एक बस नाम के लिए नामधारी विश्वासी न बनते हुए संपूर्ण विश्वास, कार्य रूपी विश्वास प्रभु में हमें करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, हमें धैर्य से रहना है। फिलिपियों के लिखा पत्र उसका पहला अध्याय 28 वचन अगर हम पढ़े तो वहां इस तरह लिखा है कि परमेश्वर के वादा, उसके ऊपर हम भरोसा करते हुए हमें धैर्य से रहना है। हर स्थिति को जीतने के लिए हमें मजबूत रहकर आगे बढ़ना है, तब हम जीत पाएंगे, जय पाएंगे। We have to move forward in faith, we have to move forward in boldness। और हमें एक मन होकर, हमारे कलीसिया के सारे लोग एक मन होकर हमें साथ चलना है। हम हर एक विषय जो हमारे पास है, सभी के पास अलग अलग तलांत है, सभी के पास अलग अलग योग्यताएं हैं। हमारे अपने कलीसिया के मेंबर्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, सभी के पास अलग अलग आशीष हैं। इन योग्यताओं को, इन काबिलियत को, इन आशीषों को हमें साथ मिलाते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हम एक मन होकर हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को एक अलग रखते हुए या एक खोया हुआ द्वीप या एक जो अपने आप में अलग है वैसा ना रहते हुए सभी हम मिलजुल कर एक मन होकर हमें आगे बढ़ना है। जो भी हमारे बीच तनाव है या द्वेष है या जो भी विषय हम लोगों को एक मन होने से रोकती है, उन सारे विषयों को हटाते हुए या उन सारे विषयों को हमें हमारे जीवनों से निकालते हुए एक मन होकर चलना जरूरी है, एक मन होकर आगे बढ़ना है। चौथा, हम ये देखते हैं कि हम एक मालिक की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह हमें अपने आप को परमेश्वर में रखना है। परमेश्वर में हम अपने आप को नौकर की तरह, यानी कि पूरा नम्र, अपने आप को दीन बना के हमें चलना है। किसी को कलीसिया में प्रोत्साहित करना है या किसी को कुछ आगे किसी विषय में आगे बढ़ाना है तो हम अपने आप को पीछे करते हुए या अपने आप को हम दीन करते हुए दूसरों को स्थान हमें देते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है या दूसरों को हमें तैयार करना है। दूसरों के लिए, कलीसिया के हर लोगों के लिए हमें एक उदाहरण की जीवन जीते दिखाना चाहिए। और पांचवा, हम ये देखते हैं कि हमें हर लोगों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना
ज़रूरी है। हम किसी को तिरस्कार न करते हुए या किसी को ना हटाते हुए सभी को स्वीकृत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे करने से हम अपनी गवाही को मजबूत कर सकते हैं, हमारे जो टेस्टिमनी है उसे मजबूत कर सकते हैं। हम देखते हैं कलीसिया में ये इन विषयों से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। हम सभी लोगों को एक समान स्वीकार नहीं करते, सभी को अपनाते भी नहीं हैं। हमारे कुछ सेलेक्टिव हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, तो उन सेलेक्टिव चीज़ों को हम अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस के ज़रिए से हम ये देखते हैं फिलिपियों के पत्र में कि हमें हर लोगों को अपनाते हुए साथ आगे बढ़ना है और हमें प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है। छठा, इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमें परमेश्वर के वचनों का ज्ञात होना चाहिए अच्छी तरह। परमेश्वर के साथ संबंध हमारा दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहना चाहिए और हम परमेश्वर में एक जीवित बलि जैसा बनते हुए हमें रहना है। यानी कि हर चीज़ जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसे त्यागते हुए परमेश्वर के लिए योग्य बलि हमें बनकर रहना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। उसके ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है। और सातवां, हम ये देखते हैं कि हम अपने संबंधों में, लोगों के साथ हमारे संबंधों में हमें आगे बढ़ना है। हमारा संबंधों को हमें सुधारना है। अब सुधारेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ अगर किए हैं तो हम तुरंत, हमारे विरुद्ध अगर कोई कुछ किया रहेगा तो हम तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं या उस विषय को हटा देते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है, बाइबल हमें ये सिखाती है कि तुम उस व्यक्ति को जो तुम्हारे करीब है उसे खोना नहीं, या उसे छोड़कर, उसे हटाकर उसे नरक में जाने देना नहीं। तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है कि हम उस व्यक्ति को, अगर वो हमारे बुराई किया होगा या हमारे विरुद्ध किया होगा, तो उससे, उसके सामने इन बातों को आप करें, इन विषयों को बताएं, उसके दोनों पहलू बताएं कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह के सोच या उसके गुणों से हमें उस व्यक्ति को स्वीकार करना है और हमारे संबंधों को हमें सुधारना, या ऐसे करते हुए हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। वी कैन हील आवर रिलेशनशिप। टूटे हुए संबंधों को जोड़ते हुए चलना, ये हमें करना है। और हमें आठवां, हमें शांति से, परमेश्वर के शांति से हमें रहना है, जो सारे समझ से परे है। उस शांति में हमें रहना है। यानी कि हमेशा हम शांतिपूर्वक, हमारे मन से, हमारे हृदय से, हम शांतिपूर्वक, हमारे सोच से हम शांतिपूर्वक कार्यों को करते हुए हमें आगे बढ़ना है, या शांति हमारे अंदर ग्रहण करते हुए, या उस शांति का गुण हमारे अंदर डालकर हमें आगे बढ़ना है। और हमारे जीवनों में हमारे जीवनों में हमें उन कार्यों को करना है जो कार्य हम कर सकते हैं। उन कार्यों को नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य हमेशा ऐसा करता है जो उसे जो नहीं कर सकता है, या वो जो कार्य को करने में सक्षम नहीं है, उन कार्यों को करने जाता है, या उस कार्य को कर वो निराश हो जाता है। ज़रूरी ये है कि हम विश्वास से, जैसे मैंने कहा, विश्वास से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते समय मेरी योग्यता को मैं, मेरी ताकत को मैं समझकर
उसका सदुपयोग करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित मैं उस लक्ष्य की ओर पहुंच सकता हूं। वो 10वां आखिरी, परमेश्वर पर, फिर एक बार यही बात है, परमेश्वर पर भरोसा करना संपूर्ण रीति से करना अनिवार्य है। हमें परमेश्वर पर पूर्ण बस भरोसा करना चाहिए। हमारे हर एक ज़रूरतों के लिए उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमारे हर एक जो आवश्यकता है, जो इस समय की मेरी ज़रूरत है, उस विषय के लिए भरोसा करना है, और उस विषय के लिए भरोसा करना है जो मुझे आगे आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि परमेश्वर हमारे हर विषय को या हर बातों को, हर स्थिति को वो संभालेगा, सुधारेगा, देगा। ऐसा विश्वास हमें, ऐसा संपूर्ण भरोसा हमें उसके ऊपर रखते हुए आगे चलना है। अगर हम इन 10 विषयों को, जैसे मैंने कहा, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि विश्वास में, धैर्य में, समान सोच में, एक दीनता में, हर स्थिति को अपनाते हुए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए, हमारे संबंधों को सुधारते हुए, शांति को अपनाते हुए, जीवन को सुंदर रीति से जीते हुए और संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर करते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। हम उत्तम लोग बनेंगे, एक अच्छे लोग बनेंगे। हमारे संबंध लोगों से भी सही होगा और परमेश्वर से भी सही होगा। जब परमेश्वर से और लोगों से हमारे संबंध सही होता है तो निश्चित परमेश्वर हमें उसकी मुख्य उजाला से भर देता है, और जब उसकी मुख्य उजाला से हमें भरता है प्रियो, हम अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती पर या इस माहौल में हम प्रकट कराते हैं। ज़रूरी है कि हम विश्वासी लोग, हम परमेश्वर के अपने लोग इस समय आगे अपना लक्ष्य रखते हुए इन 10 विषयों को जो बोला हूँ, इन 10 विषयों को अगर हम इसे अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित परमेश्वर की प्रसन्नता में हम रहेंगे। हमारे आजू बाजू, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आगे पीछे रहने वाले सभी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। पिता, हम सभी को आप योग्य ठहराएं और होने दे प्रभु कि हम आपके वचनानुसार हमारे जीवनों को जीते हुए आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवनों से, हमारे हर विषयों से आप महिमा पाएं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಇದು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಷರ್, ಇವರಿಗೆ ನೀವು कांटेक्ट ಮಾಡಿ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ಮಾಡಬಹುದು. मैं निवेदन करता हूं कि आराधना होने के बाद आप आपके दान परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए दिए हुए प्लास्टिक बॉक्स में, या आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं चर्च अकाउंट में, तो आप अपनी टाइथ, मंथली कंट्रीब्यूशन और डोनेशन स्टीफन गौडर हमारा ट्रेजरर जो है उनको कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. बर्थडेज इस तरह है. 21 तारीख सनी एलेक्स नेगल.
23rd मर्लिन विलास कबाड़गी, 23rd शकुंतला नेल्सन सोलोमन, 26th ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ರವಿ ಆಶಾಪುರೆ. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये प्रियजन अपने जन्मदिन को इस सप्ताह में मना रहे हैं. वेडिंग एनिवर्सरीज 20 तारीख आज मिसेस एंड मिस्टर नेल्सन सैमुअल आशापुरे. इनका फैमिली आज वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं. उसके अलावा प्रार्थना हम इन विषयों के लिए करेंगे. पिछले हफ्ते में भाई जॉन इमैनुअल, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हमेशा, वे गुज़र गए हैं. उनके परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति उनमें उनके साथ रहे. और प्रार्थना करेंगे नाथानेल अल्जेंड और एस्तर अल्जेंड, ये अंकल आंटी के लिए. ये लोग दोनों कोविड-19 से ग्रस्त है और काफ़ी अब ठीक है, रिकवर हो रहे हैं. और प्रार्थना करेंगे कि ये प्रियजन बहुत जल्दी रिकवर होकर वापस अपने घर लौटें. परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई ये लोग महसूस कर सकें, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे. और इसी तरह हम याद करेंगे सुतारा आंटी को, लुइसा आंटी, कुरी आंटी को, लोबो आंटी को, अर्थर आंटी को और जोएल बेन को प्रार्थना में याद रखेंगे. इस समय हम बर्थडे सॉन्ग गाएंगे जो अपने बर्थडे इस सप्ताह में मना रहे हैं उनके लिए. उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऑल, हैप्पी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना मारना. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस समय पिता हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह मना रहे हैं. पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए उनको आपके पवित्र आत्मा में समर्पित करते हैं. विनती करते हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष सनी एलेक्स नेगल, मर्लिन विलास कबाड़गी, शकुंतला नेल्सन सोलोमन, क्रिस्टिना रवि आशापुरे, इन प्रियजनों पर बरसाएं. पिता, जैसे ये प्रियजन अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विनती करते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता इनके साथ रखें. इनको हर एक अंधकार के बंधनों से बचाएं, शैतानी ताकतों से बचाएं. इनको आपकी सुरक्षा कवच ओढ़े ताकि ये प्रियजन हमेशा परमेश्वर में सुरक्षित रहे. पिता, इस नए वर्ष में आसमानी आशीषों को इनके जीवन में हर पल हर समय उंडेलते रहना और इनके जीवन के अंत तक पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता, आपकी आत्मा की अगुवाई से ये प्रियजन रह सके, चल सके और इनके मुख के ऊपर हमेशा परमेश्वर की उजाला रह सके. ऐसे अनुग्रह करें. इनके परिवारों में, इनके आने जाने में, इनके हर एक माहौल में आप इनके साथ रहकर इन्हें बल देते हुए, अच्छा आरोग्य देते हुए इन प्रियजनों को चलाएं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं उस परिवार के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह आज के दिन मना रही है. पिता, प्रार्थना करते हैं नेल्सन सैमुअल आशापुरे, उनकी पत्नी के लिए, उनके लिए. पिता, इन दोनों को आशीषित करें, इनके बच्चों को आशीषित करें. और जैसे ये अपनी शादी के सालगिरह के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, विनती करते हैं प्रभु कि इन प्रियजनों को हर एक बंधनों से दूर रखें और ये दोनों एक दूसरे के लिए परमेश्वर में हमेशा साथ देते हुए एक दूसरे को उसी प्रेम में प्रेम करते हुए परमेश्वर में रह सके, ऐसी आशीष करें. हर एक कष्ट, कठिनाई, दुख, संकट, वेदनाओं से इन प्रियजनों को बचाते हुए, उसके ऊपर जय पाते हुए इनकी अगुवाई करें. फिर एक बार पिता, प्रार्थना विनती करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो कमज़ोर अवस्था में हैं. पिता, इन प्रियजनों को आप स्पर्श करें. सुतार आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोबो आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थर आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जोएल बेन के लिए प्रार्थना करते हैं. पिता, इन प्रियजनों को आप छूकर संपूर्ण चंगाई प्रदान करें और अच्छा आरोग्य दें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं मिस्टर एंड मिसेस नाथानेल अल्जेंड,
ये दोनों प्रियजनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये लोग जिस तरह कोविड से पिता ग्रसित हुए हैं, विनती करते प्रभु कि आपने इन लोगों के जीवन में, इनके शरीर में आपके चंगाई का स्पर्श दिया है और इसीलिए ये प्रियजन बहुत अच्छी रीति से रिकवर हो रहे हैं। पिता विनती करते हैं कि बहुत जल्दी वे लोग फिर एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य को मजबूती से पाते हुए परमेश्वर में चंगाई, संपूर्ण चंगाई पाकर अपने घर लौटने के लिए आप आशीषित करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई जॉन इमैनुअल, इनके पत्नी, बच्चों के लिए, इन्हें आप सांत्वना दे, शांति प्रदान करें। उस भाई के इस धरती छोड़कर आपके पास प्रस्थान करते समय जो दुख का वातावरण उस परिवार में छाई हुई है, विनती करते प्रभु कि उस दुख को आप इस समय हटाकर आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता रखकर उन्हें शांति प्रदान करें। फिर एक बार पिता आपके बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो दान अर्पण करेंगे उस दान को आप स्वीकार करें और उसे बढ़ाकर आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। फिर एक बार पिता हम सारे लोग मिलने तक हम सभी को सुरक्षित रखें। विनती करते प्रभु कि बहुत जल्दी हम सारे लोग कलीसिया में आपकी आराधना कर सके, ऐसा माहौल आप हमें प्रदान करें। डर का माहौल, भय का माहौल, बीमारी का माहौल हमारे जीवनों से, हमारे इर्द गिर्द माहौल से, हमारे देश से, इस दुनिया से हटा दें, ताकि हम फिर एक बार प्रभु की उपासना उसके भवन में जाकर कर सके और हमारे जीवन को उसके अनुसार ये परमेश्वर के लिए योग्य रीति से हम जी सकें, ऐसे आशीषित कर धन्यवाद करते हो। सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆಮೇನ್।